So instantaneous velocity can be given by the vector that is v1, v2, v3 and the v4. Okay, here it is shown in the given diagram. Yes, so instantaneous velocity. Okay, बाकी तो उसका कुछ काम नहीं है. Now the comparison between the average and average velocity, it is also not necessary at the instant. Now acceleration देख लेंगे इसके बाद. Acceleration क्या है? ठीक है, acceleration. Yes, we all familiar with this concept, that is acceleration. What is acceleration? It is nothing but rate of change of velocity with respect to the time. With respect to the time. So time rate of change of velocity of an object is called as the acceleration of an object. Yes, it is a definitely it is a vector quantity. इसमें कोई ऐसा speed और displacement ऐसा नहीं है. इसमें से ये vector quantity, इसको magnitude ही रहेगा, direction भी रहेगा. Its direction is same as that of the change of velocity, not of the velocity. It is the direction. It is same as that of the change of velocity. Okay. सो यहाँ पे अगर यहाँ पे तुम्हें एक बॉक्स दिया हुआ है, ये हमने पहले ही स्टडी कर चुका. हम यहाँ पे इसको पहले डिस्कस कर लिया है इनमें, किसमें, रोटेशनल डायनामिक्स में. फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसमें क्या होता है. तो ओके, सपोज एक्सेलरेशन के बारे में दिया हुआ है, व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस. देखो यहाँ पे, व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, then in that case what will be the probable direction of acceleration. देखो हमने एग्जांपल दिया हुआ है तुमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. Let's suppose I will give you the examples over here. Uniform circular motion. Let's suppose this is the circular track uh, on which a certain body it is moving. Let's suppose there is one body which moving in the circular path. Okay, now we know that the velocity of that particular body, it is always tangential. So in this case velocity will be a tangential to that path trajectory. We always suppose it is performing the anti-clockwise motion, so velocity will be a tangential to that particular path. We already know about this because we have already studied the circular motion. Okay, now what about the acceleration? What about the acceleration? Now let's suppose we are going to consider this is the uniform circular motion. It means that its velocity does not changes with respect to the time. After 1 second, after 2 second, after 3 second, velocity will remain same, that is v1. यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 सेकंड के बाद में वो 2 मीटर पर सेकेंड है, 3 सेकंड के बाद में वो 3 मीटर पर सेकेंड है. वेलोसिटी रिमेन सेम. लेट्स सपोज हम ये वेलोसिटी अगर सेम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, मगर इसका जो डायरेक्शन है हर एक टाइम के बाद में चेंज हो रहा है. लेट्स सपोज आफ्टर नेक्स्ट 1 सेकंड इट इज एट दिस पॉइंट, then this is the probable direction of the velocity. Okay, let's suppose it is denoted by the v1, then this is the probable direction. Next, let's suppose it is next interval after certain next 3 second or 4 second, it is comes to this point, the direction will be changes. Okay, that is v1. Then each and every case after certain interval of timing, then you will find out that the direction of velocity changes but magnitude remains same in case of an uniform circular motion. यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब वेलोसिटी सेम है, मगर हर एक केस में इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है. डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है. इसके वजह से जो भी एक्सेलरेशन आएगा उसका जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में रहेगा, ये किस डायरेक्शन में रहता है. सो हमें पहले ही बता दिया है कि जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है इट इज सेम एज दैट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी. इट इज सेम एज दैट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी. बट इसके केस में कैसे रहेगा, तो इसके केस में कैसे रहता है, दैट एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. सो ये परपेंडिकुलर रहता है किसको, वेलोसिटी का. तो इस केस में क्या होगा, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर, ये है तुम्हारा सेंटर लेट्स सपोज. तो इस केस में ये वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पे. ओके, let us see these things. So velocity, acceleration का डायरेक्शन कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है. किसको परपेंडिकुलर रहता है, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रहता है. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द अल्फा. ओके, दैट acceleration it is denoted by the alpha. Linear acceleration denoted by the ये, angular acceleration denoted by the alpha. But let's, as it perform the circular motion, will take it the angular acceleration. Okay, so this angular acceleration, it is perpendicular to that to velocity. Okay, in case of a circular motion, because this is the theory.
When only a direction of velocity changes, then that acceleration is perpendicular to the velocity. हमने इसको सर्कुलर मोशन में क्या बताया था, बोलो इसको क्या डिनोट किया था हमने, अल्फा सी इट इज द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोला था, इसको हमने क्या बोला था, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोला था, हमने इसको क्या बोला था, अल्फा सी अल्फा रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये तीन नाम दिए थे एक इसको, इट इज टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस बोला था, ठीक है। अब जाके पता चला कि क्यों कैसा हो गया, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन में, अगर अगर मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन सेम हो डिफरेंट है, इन दैट केस दैट एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन रहता है वो परपेंडिकुलर टू द चेंज इन वेलोसिटी रहता है। यहाँ पे कहाँ पे भी ले इसको परपेंडिकुलर रहेगा, अगर यहाँ पे है, यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी है लेट्स सपोज v1, देन acceleration will be in this direction, acceleration will be in this direction, so always toward the center. Next, when only a magnitude of velocity changes, when only a magnitude, अगर magnitude change हो रहा है direction change नहीं हो रहा है, when only magnitude of velocity change, okay, then the acceleration may be parallel or anti-parallel to the velocity. अगर let's suppose this is the velocity vector, इसमें only if magnitude changes but not changes in the direction, ओके तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, मोशन अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी, इट मींस दैट इफ a sudden stone it is falls from this height, एक कोई तो भी स्टोन है यहाँ इस हाइट से अगर ये गिर रहा है, लेट्स सपोज इस हाइट से अगर गिर रहा है ये स्टोन है, सो कहाँ पे गिरेगा, ये नीचे ही गिरेगा, डेफिनेटली कोई भी बता सकता है ये सर नीचे ही गिरने वाला है, ओके, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, कहाँ पे गिरेगा, नीचे। तो मुझे बताओ इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है बेटा, इसका वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी वेलोसिटी, ठीक है, व्हेन ओनली अ मैग्नीट्यूड, इसका वेलोसिटी इनिशियली थोड़ा सा कम होगा, उसके बाद में जैसा जैसा वो अर्थ के नजदीक जाता होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ओके। नीचा इसका मतलब ऐसा नहीं है, नीचा नहीं है ये, ठीक है, ये है तुम्हारा वेलोसिटी, जैसे जैसे वो अर्थ के पास आएगा वेलोसिटी उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, सेम है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वेलोसिटी का डायरेक्शन वही है, मगर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस केस में जो हम अल्फा लेते हैं और एक्सेलरेशन लेते हैं, वो एक्सेलरेशन इट इज पैरेलल टू और एंटी पैरेलल टू दिस v, वेलोसिटी का डायरेक्शन। मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन जो है वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, जिसका डायरेक्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। सो व्हेन ओनली अ मैग्नीट्यूड of velocity changes, then acceleration is parallel or anti-parallel to the velocity, example motion under the gravity. Next concept है when both magnitude and direction of velocity changes, अगर अब हम लेते हैं अभी, अब both change हो रहा है, magnitude भी change हो रहा है और direction भी change हो रहा है velocity का, then what will be the probable direction of acceleration, okay, why we are going to study this, just we have to find out the acceleration or we have to find out the direction of acceleration, all these are concept are only related to find out the acceleration, the direction of acceleration only, okay. Now if are going to change the magnitude and direction of velocity, then what will be the probable direction of acceleration, okay. So in that case acceleration has the two components, one is perpendicular to the velocity and another is parallel or anti-parallel to the velocity. यही हमने किया था प्रोजेक्टाइल मोशन में, यही हमने किया था सर्कुलर मोशन में, ठीक है। जब हमने बताया था कि लेट सपोज इट इज नॉट मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर यूसीएम, नॉट यूसीएम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं घूम रहा है, देन इन दैट केस वी हैव फाइंड आउट द टू, लेट सपोज दिस इज द सर्कुलर ट्रैक फॉलोड बाय अ पार्टिकल, ओके, लेट सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, एक कोई तो भी यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से घूम रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इट परफॉर्म नॉन यूसीएम, UCM means what? It is not having the same angular velocity. Angular velocity उसकी सेम नहीं रहेंगी, ठीक है।
पहले इनिशियल टाइम में डिफरेंट रहेगा, फाइनल डिफरेंट रहेगा, ओके। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट ओमेगा से क्या होगा, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस, ओमेगा विल बी डिफरेंट, सो ओमेगा चेंज होता रहेगा यहाँ पे देखो। सो नेक्स्ट इन दिस केस, सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, बराबर है, क्योंकि नॉन यूसीएम है तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इनिशियली सम रहेगा, देन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इट डिफरेंट रहेगा। लेट्स सपोज इनिशियली 10 है, 10 रेड पर सेकंड है, देन आफ्टर 10 सेकंड 15 रेड पर सेकंड है, देन आफ्टर 10 सेकंड 20 रेड पर सेकंड है, इट मींस दैट इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन तो वेलोसिटी का हमें पता है, इसका डायरेक्शन तो चेंज होता ही रहता है। कैसे होता रहता है, देखो इसको डायरेक्शन, देखो हर एक डायरेक्शन में हम इसको निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन, ठीक है, उसके अगर रहा तो यहाँ पे फाइनल डायरेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर हो, यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे फाइनल डायरेक्शन होगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे फाइनल डायरेक्शन होगा। बट नाउ इन दिस केस, okay, this is the, let's suppose this is the velocity v1, this is the velocity v2, this is the velocity v3, this is the velocity v4. Now suppose we have to find out, the acceleration, the direction of the acceleration, how you can find out? So here as it is चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो रहेगा वो क्या रहता है तुम्हें पता है, बोलो, उसकी वजह से चेंज इन डायरेक्शन की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन रहता है, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, ये हो गया तुम्हारा अल्फा सी, ये हो गया तुम्हारा अल्फा सी, ठीक है। देन ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में जो तुम्हारा रहेगा, इसी डायरेक्शन में देखो, इसी डायरेक्शन में जो रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, बोलो, अल्फा, इसी डायरेक्शन में जो रहेगा, चलो बताओ, इसी डायरेक्शन में जो रहेगा तुम्हारा वो क्या रहेगा, ये भाई देखो इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे तुम, अल्फा, ठीक है। अरे ये है तुम्हारा अल्फा सी, ये है तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा टी अलोंग दैट एक्सिस, एंड द नेट एक्सेलरेशन, okay, now you have to find out the net acceleration, it is nothing but the perpendicular vector sum of this, okay, इसको हम नेट एक्सेलरेशन बोल रहे थे, इस तरीके से हमने निकाला था उसको, दिस इज नथिंग बट अल्फा नेट। अरे निकाला था क्या, नहीं निकाला था, हमने निकाला था ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन अल्फा सी होगा, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड। हमने उस टाइम में सिर्फ यही बोला था कि एक्सेलरेशन 3 टाइप का रहता है, उसमें बोला था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दी नेट एक्सेलरेशन, okay, alpha c it is due to the change in direction, alpha t it is due to the change in magnitude, and alpha net will be the total combination of both, okay। projectile motion में ये तुम्हारा alpha net तुम्हें useful रहेगा। so these are the acceleration related concept, have you got it or not, okay। so acceleration change in direction that we have studied over here, yes, yes or no? यस सर, सर सभी लेफ्ट हो गए। ओके, देखेंगे अभी बाद में उसको, we will discuss next topic on yesterday or tomorrow, thank you।